Hello students, welcome everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Kumar Bharati Standard 9th Unit 2 2.2 A True Story of Sea Turtle. This is a write-up which highlights how a group of volunteers undertook a project for the protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra and involved the local villagers in the project. This is a very beautiful story written by Bhau Kadre, and he told us about the sea turtle and how they involved to the local villagers, local peoples to protect the turtle and to survive them. So let's go. We are going to learn this story. A true story of sea turtles. We were surveying the white-billed sea eagles in the summer that year. As we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white eagle shells nearby. Inquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. This came as a surprise. We had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. We, dis- we decided to study this unusual occurrence further. We learned that the beach where we had found the egg shells had been sealed to the public for nearby 1 month. After people smuggling bricks were catch in that area. But what we learned further shocked us to the core. When the writer and their team going to survey some part of the sea, then some volunteers noticed some shallow pits. Shallow pits means a large hole in the ground with white eggshells on the beach. Inquiries revealed that they were turtle eggs. This was usual for the volunteers, and they had never before come across turtle eggs in their walks along the Konkan beaches in all the previous years. अब ये जो राइटर और उनके जो टीम थी जो सर्वे कर रही है वाइट बिलाइड सी ईगल्स की, ये बर्ड का नाम है सी ईगल्स। तो इनकी जब वो सर्वे कर रहे थे तो उन्हें समंदर किनारे ऐसे ढूंढते ढूंढते कुछ बहुत बड़ा होल मिला, शैलो पिट्स मिला। तो वहाँ पे उन्हें इंक्वायरी करने के बाद पता चला और कुछ ऐसे एक के शेल्स थे कि जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। इसलिए उन्होंने विलेजर से इंक्वायरी की कि ये सब क्या है। तो उन्हें वो पता चला कि ये टर्टल्स के एग्स हैं और वो जो एरिया था वो पूरा सील किया हुआ था, क्योंकि क्योंकि कुछ स्मगलर्स जो होते हैं वो उसकी स्मगलिंग करके पैसे बोरो कर सकते थे, इसलिए वो एरिया सील कर दिया था। सील टू द पब्लिक मीन्स वेयर पीपल नॉट अलाउड टू एंटर। सो दिस एरिया सील्ड बाय द पुलिस for nearby 1 month. Then next para, turtles nest along the entire coastline of our state. There are a few people in every village who keep coming the beach in the early hours of the morning. Throughout the year, when the female turtle comes on shore to nest and to lay eggs, she leaves behind her trail just like a track of wheels on the stand. The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is about half a meter deep. They dig up the nest and steal all the 100 up to 150 eggs that are laid inside. These eggs are then either eaten or are sold in the market. If a turtle is stopped while it is still laying eggs, it is allowed to live till the laying is over. As soon as the eggs are laid, it is catched and then killed and eaten. This ruthless practice is observed in all parts of the world. However, in India, sea turtle have been given protection by including them under I, Schedule I of the Indian Wildlife Protection Act 1972. That means turtles have been given as such protection
as tigers. Therefore, all this business of gathering turtles' eggs and killing turtles is carried on in a secret, hush manner. This information was distressing. We began to think seriously about it. We decided to undertake a project for the protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra. Next paragraph, second paragraph. Turtle nest along the entire coastline of our state. टर्टल के जो नेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन में हमारे महाराष्ट्र स्टेट में पाए जाते हैं. कोस्ट लाइन मीन समुद्र का किनारा. तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टर्टल के नेस्ट पाए जाते हैं. देयर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कोम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर जो विलेजर्स होते हैं जो समुद्र के किनारे में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा बीच कोम्बिंग करते हैं. जैसे हम हमारे हेयर्स को कोम करते हैं वैसे ही वो समंदर का किनारा भी कोम करते हैं. और वहाँ पे कुछ मिले या नहीं मिले, अर्ली मॉर्निंग को सवेरे सवेरे वो पूरा समंदर का किनारा कोम करते हैं, ढूंढते हैं और पूरा छानबीन करते हैं. व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स ऑन शोर टू नेस्ट एंड टू ले एग्स, शी लिव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील ऑन द सैंड. अब जो फीमेल टर्टल होती है वो क्या करती है, वो समुद्र के किनारे पे आती है और नेस्ट पे अपने एग्स डालती है और वो पीछे एक सीरीज़ की तरह छोड़ जाती है. ट्रेल मीन्स सीरीज़. शी लिव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड. वो चलती है तो उसके पैरों के निशान ऐसे होते हैं जैसे कि वो एक सीरीज़ छोड़ के गई हो. तो बाकी सब लोग उसे फॉलो करते हैं और उसके एग्स वहाँ से नेस्ट में से निकाल लेते हैं. The egg hunters follow this trail right up to the nest which is about half a meter deep. अब जो एग हंटर जो होते हैं वो वही ट्रेल, वही सीरीज़ फॉलो करते हैं, उन जो टर्टल का नेस्ट होता है उसके पास जाते हैं और हाफ अ मीटर डीप जो नेस्ट होता है, टर्टल ने अपने एग्स डाले हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो नेस्ट बनाया होता है वो ज़मीन में कम से कम हाफ अ मीटर डीप होता है. तो उसे डिग करते हैं और वहाँ से टर्टल के एग्स निकालते हैं. दे डिग अप द नेस्ट एंड स्टील ऑल द 100 to 150 eggs that are laid inside. These eggs are then either eaten or sold in the market. अब ये जो 100 से 150 एग्स होते हैं वो सब वो बाहर निकालते हैं और उसे एक तो खाते हैं या बेच देते हैं. Then, if a turtle is stopped while it is still laying eggs, it is allowed to live till the laying is over. अगर टर्टल का जो एग्स है वो चोरी करना बंद हो गया तो वो भी बाकी सब एनिमल्स की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं. As soon as the eggs are laid, it is catch and then killed and eaten. अब वो जो एग्स है वो पकड़ के वो क्या करते हैं, एक तो खाते हैं, मार देते हैं, नहीं तो बेच देते हैं. दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो क्रूएल है, रूथलेस मीन्स क्रूएल, तो ये जो क्रूएल बिहेवियर है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. हाउएवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर शेड्यूल आई ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. अब टर्टल्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि उन्हें अपने इंडियन एक्ट में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 के तहत उन्हें प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए टर्टल. इसलिए उन्हें यानी टर्टल को प्रोटेक्शन दिया गया है एक्ट के हिसाब से. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक्ट में टर्टल को प्रोटेक्शन दिया है. या कोई उसकी तस्करी करे, उसे चोरी करे, खरीदे, उन्हें बेच दे, मार दे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इसलिए दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर. मतलब जैसे ही टाइगर को
प्रोटेक्शन दिया गया है वैसे ही टर्टल को भी प्रोटेक्शन हमारे इंडियन एक्ट में दिया गया है. Therefore, all this business of gathering turtle egg and killing turtle is carried on in a secret, hush hush manner. इसी वजह से ये जो टर्टल के एग्स चोरी करना और उन्हें पकड़ के मारना, बेचना, ये सब जो है वो चोरी छुपी किया जाता है. दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग. अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इरिटेटिव है. वी बिगैन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट. अब हम लोग इन सब बातों के लिए सीरियसली सोच रहे थे. वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र. हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो प्रोटेक्शन है उसके तहत हम टर्टल को प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन देने की कोशिश करें. और इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र में जो टर्टल्स के नेस्ट होते हैं उन्हें भी हम प्रोटेक्ट करें, उनका कंजर्वेशन करें. नाउ आई एम गोइंग टू रीड थर्ड पैराग्राफ. We had no experience regarding sea turtles. So, first of all, we undertook a study of turtles. We contact institutes that work for the protection of turtles in India. The next step was launching a turtle protection campaign at Vilas, Taluka, Mandangad, District, Ratnagiri. This was done with the support of cooperation of the Forest Department. As part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for the turtle nest on the beach in the morning. When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with wire fencing. They had to watch over the protected nest to prevent thieves. In the first year, we could successfully protect 50 nests in this manner. When the babies hatched out of the eggs, what an event that was! The whole village rushed to the beach to witness the spectacle. When the tiny turtles hatchling hurried across the silver sand to meet the rolling, boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. Some of the elder villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchling rushing to the sea. In this paragraph, writer tells us a story about how his team protect the turtle. So he said, we had no experience regarding sea turtle. So first of all undertook a study of turtle. अब टर्टल के बारे में उनके टीम को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि उसका स्टडी करेंगे. वी कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया. अब उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है जो टर्टल को प्रोटेक्ट करती है उन्हें कॉन्टैक्ट किया. द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास तालुका मंदनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी. अब रत्नागिरी में जो मंदनगढ़ नाम का एक तालुका है वहाँ पे उन्होंने वेलास नाम के एक गांव में उन्होंने कैंपेन ऑर्गेनाइज किया. This was done with the support of cooperation of the Forest Department. As part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for turtle nest on the beach in the morning. अब ये जो कैंपेन था वो कैंपेन खड़ा करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प ली और कैंपेन का एक पार्ट करके वो लोगों ने जो विलेजर्स थे जिन्हें पता था कि किस जगह पे टर्टल के एग्स रह सकते हैं तो उनकी भी हेल्प ली. और जो हमेशा सवेरे कॉम्बिंग करते थे पूरा बीच और टर्टल के एग्स निकालते थे तो उन्हें पता था, तो उनकी भी हेल्प ली और उन्हें भी मॉर्निंग को बुलाया. When they came across a nest, they had to carefully remove the egg from the nest and bury them again in a similar pit, but protected with wire fencing.
अब वो लोगों ने क्या किया कि जो होल में वो खड्डों टर्टल के एग्स थे वो निकाले और वैसे ही दूसरे होल में वो अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख दी है। लेकिन उसके ऊपर ऊपर उन्होंने वायर का एक फेंसिंग लगाया जिसकी वजह से वो चोरों से उनका प्रोटेक्शन कर सकते थे और उसे हमेशा देखते रहे, उसके ऊपर नज़र रखते रहे। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। और इस तरीके से पहले ही साल में उन्होंने कम से कम 50 नेस्ट बचाए। When the babies hatch out of the eggs, what an event that was! अब जब भी वो एक से बच्चे बेबीज बाहर निकलने लगे, हैच मीन्स ऑफ एन एग ओपन एंड प्रोड्यूस अ यंग एनिमल। जो बेबी टर्टल है वो एग्स में से निकलने लगे तो तब का जो नज़ारा था वो बहुत ही देखने लायक था। What an event that was! The whole village rushed to beach to witness the spectacle. और ये सब नज़ारा देखने के लिए, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पूरे गांव के लोग वहाँ पे आ गए थे। When the teeny turtle hatchling hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea. What an ovation they received from the onlookers. जो भी देखने वाले थे उन सबके चीयर कर रहे थे वो बेबी बॉय के लिए। वो बहुत हैप्पी हो गए थे, इसलिए वो नज़ारा बहुत देखने लायक था। Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtles' eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchling rushing to the sea. अब ये जो एल्डर थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने कन्फेस किया कि ये हमारा भी फर्स्ट टाइम है बेबी टर्टल को देखने का, उन्हें बाहर एक से बाहर निकलते हुए देखने का, क्योंकि वो भी स्कूल लाइफ में से क्या कर रहे थे, उनके स्कूल लाइफ थी, यानी वो जब बच्चे थे तब से ही वो टर्टल के एक बेचा करते थे, उसे खाया करते थे। और ये उनका भी फर्स्ट टाइम था कि बेबी टर्टल देखे और उन्हें चीयर करे, उनके लिए ओवेशंस करे। सो दिस इज़ अ स्टोरी of their team, how they protect and how they cheer to the baby turtles. This indicates that the theft of turtle egg was so common that no eggs had been allowed to hatch for many years in the past. इससे हमें पता चलता है कि बहुत सालों से कोई भी बेबी टर्टल बाहर निकलने को अलाउ ही नहीं था, क्योंकि चोर उसे चोरी करते थे, एक तो मार देते थे या बेच देते थे, खा डालते थे। Now we will see fourth paragraph. There are 7 types of sea turtles in the world. 5 of each are found in India. The olive ridley turtle nest along the entire coastline of Maharashtra. Green turtles and hawkbills have also been found. An amazing characteristic of turtles is that when the female turtles reaches maturity, that is, nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her egg at the same place where she was born. The female comes on shore just to take a nest in the sand and lay her eggs, and immediately return to the sea. She does not return to the nest after that. The eggs hatch after a period of 45 to 50 days using natural heat. Innumerable dangers await the little hatchling in the deep sea, and they have to face them all on their own. Their survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000. Turtles perform an important functions. They keep the sea clean. Thus, they occupy an important place in marine ecology. Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. In this para, we learn more knowledge about the turtles. There are 7 types of sea turtles in the world. 5 of which are found in India. पूरे दुनिया में 7 टाइप्स के टर्टल्स पाए जाते हैं और उनमें से 5 टाइप के टर्टल हमारे इंडिया में मिलते हैं.
The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. महाराष्ट्र के समुद्र के किनारे पे ऑलिव रिडली ये जो टर्टल का टाइप है वो पाया जाता है, और उसके साथ ग्रीन टर्टल्स एंड हैवक बिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reached maturity, that is nearly after a gap of 15 years, she returned to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. टर्टल की एक स्पेशल चीज़ है, उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, फीमेल टर्टल का जहाँ पे जन्म हुआ है, तो वो खुद के एज के 15 साल होने के बाद वो प्लेस पे आती है, वही प्ले आती है. शोर मीन्स बीच या सी साइड, तो वहाँ उस जगह पे वो आती है और अपनी टर्टल वहाँ पे ही डालती है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था. सो द फीमेल कम्स ऑन शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड एंड ले हर एग्स. वो वहाँ पे सिर्फ वो शोर पे, बीच पे, सी साइड पे सिर्फ उसी बात के लिए आती है कि वहाँ पे वो एक नेस्ट बनाती है और वहाँ पे उसके जो एग्स है वो वहाँ पे रख देती है एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द सी, और जल्द से जल्द वो सी में वापस चली जाती है. शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट. उसके बाद वो कभी भी वो अपने बच्चों के पास या एग्स के पास नहीं आती. द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 days यूजिंग नेचुरल हीट. नेचुरल हीट का यूज़ करते हुए एग्स में से बेबी टर्टल्स बाहर निकलते हैं. Innumerable danger await the little hatchling in the deep sea and they have to face them all on their own. अब जब बेबी टर्टल होते हैं तो उन्हें इन्यूमरेबल यानी काउंटलेस बहुत क्वांटिटी में डेंजर को फेस करना पड़ता है. सो their survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000. इसी वजह से हजारों टर्टल में से सिर्फ एक या दो ही टर्टल्स बच पाते हैं. टर्टल परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. दे कीप द सी क्लीन, thus they occupy an important place in marine ecology. अब यहाँ पे फंक्शंस बताए हैं टर्टल के, बहुत इम्पोर्टेंस बताया है. वो कौन सा काम करते हैं, तो वो अपने सी को, समुद्र को क्लीन करने का काम करते हैं. समंदर को क्लीन करने का काम करते हैं टर्टल, और मरीन इकोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है. Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. इसी वजह से जो टर्टल्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसी वजह से एक हमने देखा कि एक्ट भी है इस टर्टल के लिए. After the success at Vilas, we started implementing the project in other places too. Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. Protection was offered in 80 of villages where the turtle nests were found. Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection. We started the Turtles Friends Award, that is Kasomitra, to encourage more people to be a part of the protection campaign. A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message. Now, the writer tells us about how they encourage other people for protecting the turtles, baby turtles. So, after the success of Vilas, we started implementing the project in other places too. अब वो लोगों ने क्या किया, राइटर ने और राइटर के टीम ने पहले का जो उनका प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ, तो बाकी जगह पे भी वो उसे सक्सेस करने के पीछे लग गए. अदर जगह पे भी वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने लगे. Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. 5 years में उन्होंने महाराष्ट्र के जो समंदर का किनारा था उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. Protection was offered in 80 of the villages where turtle nests were found. अब ये सब उन्होंने बाकी के भी जगह पे शुरू कर दिया था.
Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the English. अब ये जो प्रोजेक्ट था वो इन सब लोगों के लिए था जो टर्टल के प्रोटेक्शन से बहुत दूर थे. दे इन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन. अब राइटर और राइटर के टीम ने उन सब लोगों को ट्रेन किया और प्रोटेक्शन के वर्क में उन सबको इन्वॉल्व किया. और उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड भी स्टार्ट किया. उसका नाम था टर्टल फ्रेंड अवार्ड, दैट इज कासव मित्र. वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड कासव मित्र टू encourage more people to be a part of protection campaign. अब जो टर्टल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसी वजह से जो हमारे राइटर है और उनकी जो टीम है उन लोगों ने कासव मित्र नाम का एक अवार्ड स्टार्ट किया और सबको इनकरेज करने लगे. A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread the message. अब ये अवार्ड है, उसके पीछे वो अवार्ड मिलने को क्या रीज़न है, ये सब कुछ सबको पता होने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई और कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट बनाया जिसमें से सबको नॉलेज आएगा शॉर्ट फिल्म में से और कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट में से. और सब प्रोत्साहित हो गए, सब इनकरेज हो जाएंगे टर्टल के प्रोटेक्शन करने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. द ईयर 2006 saw the beginning of a novel concept, Turtle Festival or Kasav Mahotsav, an opportunity for tourists to witness the unique spectacle of the hatchling rushing out of the sea. अब 2006 में एक नई कंसेप्ट बाहर निकाली, नॉवेल कंसेप्ट. इसमें क्या किया कि टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव नाम का एक उन्होंने कंसेप्ट बाहर निकाली. एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टेकल ऑफ द हैचलिंग रशिंग आउट ऑफ द सी. अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी किसके लिए? टूरिस्ट के लिए, कि वो अपने खुद के आँखों से देख सके, एक अनोखा नज़ारे के वो विटनेस बन सके कि एग्स में से बेबी टर्टल बाहर निकल रहे हैं और वो सब के सब समंदर के तरफ बढ़ रहे हैं. A short film on turtle and the natural beauty of कोकण were additional feature of the festival. अब इस फेस्टिवल में एक एडिशनल एक्टिविटी इन लोगों ने की, एडिशनल फीचर इन लोगों ने किया, तो वो था एक शॉर्ट फिल्म तैयार की जो टर्टल के ऊपर थी और कोकण की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके ऊपर उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई. तो बहुत ही सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, बहुत ही सुंदर ये दिखने लगा, तो सब टूरिस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ आ रहे थे. एट द सेम टाइम वी वेयर क्वाइट फर्म on one issue, the hatchling should not come to even the slightest harm due to this tourist activity. अब अगर टूरिस्ट यहाँ पे ये सब कुछ देखने के लिए आएंगे तो उनका मन होगा कि जो बेबी टर्टल है, जो टर्टल है, तो वो उसे कुछ ना कुछ हानि ज़रूर पहुँचाएंगे. तो हम लोग क्या थे? फर्म थे, क्वाइट कन्फर्म, थोड़ा कन्फर्म थे. फर्म थे मीन्स कन्फर्म थे कि टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ हार्म पहुँचाएंगे, तो उससे भी सावधानी रखने की हमारी जिम्मेदारी थी. द टूरिस्ट वेयर अकोमोडेटेड इन द होम ऑफ द विलेजर्स. अब वहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे टर्टल्स को देखने के लिए, कोकण का नज़ारा देखने के लिए, तो वो विलेजर्स के घर पे रहने लगे. द रिस्पॉन्स टू दिस नॉवेल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सलेंट. अब इस नॉवेल्स की वजह से, इस नॉवेल कंसेप्ट की वजह से होम स्टे ये नई बात, बहुत अच्छी बात बाहर निकली. अ टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज इस्टेब्लिश इन ईच विलेज, द मेंबर बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे. अब टर्टल फ्रेंड्स क्लब नाम का एक क्लब तैयार हुआ और सब जो विलेजर्स थे जो होम स्टे करने के लिए दे रहे थे टूरिस्ट को, उनकी एक उनकी वहाँ पे होम स्टे वाले लोगों ने अपना घर जो रहने के लिए देते थे वो सब एक जगह पे मेंबर बन गए
ऑल विलेजर्स वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे. अब सब जो मेंबर थे वो टूरिस्ट को सेम रेट पे घर रेंट पे देने लगे. दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फॉर होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड. ये बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स हो गया था वहाँ के लोगों को. तो इसमें से वो 10% जो है वो टर्टल प्रोटेक्शन फंड को दे रहे थे, क्योंकि ये टर्टल अगर प्रोटेक्ट हुए तो टूरिस्ट आएंगे तो वो लोग होम स्टे के लिए दे पाएंगे, और होम स्टे के लिए देंगे तो फिर उन्हें इनकम मिलेगा. क्योंकि होम स्टे करने के लिए अगर हम टूरिस्ट को देंगे तो उसके साथ हम उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, और कुछ उनकी जो नीड है वो भी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे. तो फिर उसमें से इनकम गांव वालों को मिल रहा था. उसी वजह से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कमाई का 10% वो टर्टल प्रोटेक्शन फंड को दे रहे थे. द फंड वुड बी अनटाइटल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स. इसमें से टर्टल का प्रोटेक्शन हो रहा था और कंजर्वेशन हो रहा था, उनकी देखभाल हो रही थी. एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प द फेस्टिवल रीच ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंड आवर वेबसाइट. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, वेबसाइट्स है, इसमें से ये जो शॉर्ट फिल्म है, कोकण का जो नज़ारा है वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया, और पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगैन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस ऑफ कोकण. अब बाद में पूरे दुनिया के लोग कोकण के विलेजेस को कांटेक्ट करने लगे कि यहाँ कि ऐसा सुंदर नज़ारा कहाँ पे है, हम कहाँ पे रह सकते हैं, कौन सी फैसिलिटी है, नहीं है. ये सब जानने के लिए कोकण के विलेजर्स को पूरे दुनिया के लोग कॉल करने लगे, पूछने लगे. मोर एंड मोर विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35. अब जो इस वजह से जो है विलेजर्स को बहुत इनकम मिलने लगा, वो बहुत आगे जाने लगे. और पहले जो बहुत ही कम होम स्टे फैमिलीज थी, अब उनकी वो बढ़ते 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 वहाँ पे मेंबर बन गए थे 35. यानी 35 फैमिलीज को अब इनकम मिल रहा था ये होम स्टे कंसेप्ट की वजह से. As many as 800 people began to visit villas in the turtle season. This meant more business for the villagers. अब ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग, up to 800 people began to visit villas in the turtle season. जब भी बेबी टर्टल एग्स में से बाहर निकलने का सीज़न था, टर्टल सीज़न था, तो वो सीज़न में विलास को अप टू 800 पीपल विजिट करने लगे थे. तो उसकी वजह से सबका बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था. होम स्टे का बिजनेस है या और भी कुछ चीज़ें बेचने का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़ोर से चलने लगा था. नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज़्म कैन बी सोर्स ऑफ इनकम. अब उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि जो टूरिज़्म है वो भी एक इनकम का सोर्स हो सकता है. Tourists bring in money, and in order to earn that money, it was important to protect the turtle hatchling. अब पहले जो टर्टल को मारते थे लोग, टर्टल के एक को मारते थे, खाते थे, बेचते थे. अब ये सब कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि टूरिस्ट जब आते थे तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते थे. वो जो एग्स बेचने से भी ज़्यादा पैसे उन्हें टूरिस्ट आने की वजह से मिलते थे. दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थ्रू लाइवलीहुड इन इट्स ट्रू सेंस. देखा जाए तो सचमुच ऐसी बात हो गई है कि नेचर का भी कंजर्वेशन करो और खुद का भी. नेचर का कंजर्वेशन हो रहा है, खुद का, और उसके साथ साथ खुद का भी कंजर्वेशन हो रहा है, खुद का भी बचा हो रहा है. वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट मेन सक्सेस स्टोरी. अब वेलास की जो प्रोजेक्ट था, वेलास का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही सक्सेसफुल एक स्टोरी बन गई है. लास्ट पैराग्राफ. सह्याद्री निसर्ग मित्र, our organization believe that it is only the local villagers who can ultimately
excellent protection to the local species. अब इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी सह्याद्री निसर्ग मित्र, ये अब बिलीव करने लगी विलेजर्स पे कि वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं. इफ़ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकेम सस्टेनेबल. अब इन विलेजर्स पे भरोसा किया जाए तो वो उनके अच्छे तरीके से इनकम का सोर्स बन जाएगा. Sustainable means income source. With this belief, we entrusted the project to the forest department, the Gram Panchayat, the villagers and their turtle friends club. अब इसी वजह से जो राइटर है और राइटर की टीम है, वो उन सब ने ये प्रोजेक्ट किनके हवाले किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, ग्राम पंचायत के पास, विलेजर्स के पास और जो टर्टल फ्रेंड्स क्लब है उन सबको ये प्रोजेक्ट सौंप दिया. ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली. और ये सब जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे. नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी. अब ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है. इसी वजह से हम लोग तब भी हेल्प करते हैं जब उन्हें ज़रूरत है. ओके, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पता चला है कि टर्टल कैसे एक एग्स में से निकलते हैं, उनकी लाइफ कैसे है, उनका फंक्शंस क्या है, कैसे वो इम्पोर्टेंट है. और बहुत ही सुंदर तरीके से भाव कदरे इन्होंने हमें ये लेसन में से बताया है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.